Well, students, yesterday we talked about marketing research. तो अगर आपको याद हो तो एंड पे हमने उसको कहा था कि लुक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस पहले कर लिए, which question hypothesis need to be tested, तो फिर क्वेश्चनियर फॉर डेटा कलेक्शन और appropriate or suitable sampling design and sample size। ये हमने डिस्कस किया कि आप स्टैटिस्टिशियन की गाइडेंस से उसका बेहतर सैंपलिंग प्रोसीजर, जो कि मैंने कहा कि या आप डिफरेंट लिटरेचर को रिव्यू करते हुए कि लोगों ने इन हालात में जिस तरह की आपकी पॉपुलेशन हो तो उसमें लोगों ने कौन सा इस्तेमाल किया, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग और रैंडम प्रपोजल सैम्पलिंग एटसेट्रा। तो फिर डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर हमने डिस्कस किए। इट कैन बी मेल क्वेश्चनर, इट कैन बी ड्रॉप इन, you can drop through letterbox yourself and may ask them to post it, return it back through postage paid provided envelope, or you may collect yourself, or you may telephonic data collection. Alternatively, you may opt for personal interview method. So different methods of data collection. And again, I discussed yesterday that in personal interview, it is laborious, time consuming, because you need to catch each and every respondent and ask them different questions. But it is best as far as the completion of the questionnaire is concerned, because I told you yesterday that if you use mail questionnaire or if you drop in and ask them to return, maybe half questionnaire remain unfilled. The questions which seem difficult or confusing to the respondent may leave it blank. तो आप पर्सनल इंटरव्यू में आप डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देते हैं और हर क्वेश्चन का जवाब आप यकीनी बना लेते हैं। उसके बाद डेटा एंट्री एंड एनालिसिस में अगेन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। यस्टरडे मैंने कहा कि आपकी जो मैथड, अगर आपने रिग्रेशन रन करना है, कॉज एंड इफेक्ट, एक तो सिंपल टेबुलेशन से काम चल गया तो ठीक है, बट इफ यू वांट टू क्वांटिफाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आप उसको देखना चाहते हैं कोई रिग्रेशन वगैरह, कॉज एंड इफेक्ट, तो फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल वो भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपने लीनियर फॉर्म या आपने लॉग फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म, which form of the mathematical model should be used, कौन से कितने वेरिएबल्स डाले जाएंगे उसके अंदर, और अकॉर्डिंगली कल भी मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन योर मैथमेटिकल फॉर्म, interpretation of the coefficients will be accordingly made। और अब उस पर आप नजर मारते हैं आर स्क्वायर, रिग्रेशन रन करते हैं आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान पाई जाती है। 0 to 1, minimum is 0 and maximum is 1. 1 are interpreted as 100%. It means, you see, you have regressed the change in dependent variable. You have observed how much it has been explained or caused by the independent variables included in the model. If it is 1, it means you have captured the entire change. Your coefficients are there and all 100% change which is taking place
independent variable has been explained by your model. But if it is 0.85, it means 15%, 15% का आपको अंदाजा नहीं है. Unknown factors. You will call it error term. Yes, residual factor. Whereas 85 bin. So if it is just 0.3, 0.3, it means the model, the effort that you have made is only telling about the 30% change in dependent variable. So it is 1/3, less than 1/3, and 70% remains unknown. And if you want to, you know, formulate some policy to bring some changes in the dependent variable, so this model will be helpful only to a small extent, 30% or 1/3 of the change, 2/3, you don't know the causes of that change. So that way, regression R square, higher the value of R square, more, reasonable that model or strong model is considered. F ratio, T ratio. T ratio shows significance of individual coefficients. You have included 4, 5 independent variables. So regression coefficient for each independent variable. तो कुछ उसमें significant होंगे, कुछ non significant होंगे, साइन पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी हो, और उसकी जो T ratio or T value will be value of beta divided by standard error of beta. So it should be greater than 2. If greater than 2, the coefficient is significant. If it is less than 2, it is non-significant. It means the coefficient which you have found, it is just per chance. If you take another sample, it won't happen. It won't happen. So in fact, it is 0. तो ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी, और इसको इंटरप्रेट करें प्रॉपर्ली रिजल्ट्स को, और मैनेजमेंट कैन मेक यूज ऑफ दैट टू एड्रेस द मार्केटिंग इश्यूज. टुडे वी आर टू टॉक अबाउट द रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस क्या है? दो फिगर्स के दरमियान एक रिलेशन, एक उनके दरमियान रेशो, दो फिगर्स एक जैसे हमने बीसीआर निकाली थी, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हमने बीसीआर निकाली. व्हाट वाज दैट? बेनिफिट कॉस्ट रेशो. वो क्या थी? टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट. अब बेनिफिट्स और कॉस्ट्स दोनों, हम पाकिस्तान में हैं तो रुपयों में होंगे, अगर अमेरिका में हैं तो डॉलर्स में होंगे, अगर आप मिडल ईस्ट में हैं तो कैन बी इन रियाल, इन दीनार, और इन सम अदर करेंसी, दिरहम. इफ यू आर इन यूके, इट मे बी इन पाउंड स्टर्लिंग, और इन यूरोपियन मार्केट इट विल बी यूरो. सो ऊपर नीचे एक ही तरह के आदाद होंगे, तो उससे आपकी ये रेशियो निकल आएगी. तो ये जो रेशियो एनालिसिस है, ये बिजनेस कम्युनिटी है या लोग स्टेक होल्डर्स इसमें कौन से हैं कि बैंक और लैंडर्स, वो भी स्टेक होल्डर है. उन्होंने लोन देना है, वो लोन दें या ना दें. देखो, कमर्शियल बैंक्स आर सिटिंग देयर, उनके फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक का फंक्शन है टू एडवांस लोन्स, टू रिसीव डिपॉजिट्स. एक तरफ से वो डिपॉजिट्स रिसीव करने हैं, और दूसरी तरफ से उन्होंने आपको लोन्स एडवांस करने. अब इट मीन ये तो उनकी ख्वाहिश है. दे आर सिटिंग ओवर देयर दैट प्लीज कम एंड बोरो. लेकिन वो ईदी फाउंडेशन नहीं है, सहारा ट्रस्ट नहीं है,
शौकत खानम नहीं है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एमसीपी हो, बैंक अल फलाह हो या बैंक अल हबी, whichever it is, वो भी मसूद टेक्सटाइल, सितारा केमिकल्स या फैशन टेक्सटाइल या सफायर, इन सब की तरह वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड एम इज टू जनरेट प्रॉफिट, टू make your organization more and more viable. In the long run, उसके assets में अज़ाफ़ा, उसके resources को strengthen करना, उसके assets में अज़ाफ़ा करना, that is the objective. तो अब assets में कैसे अज़ाफ़ा करना कि आपने लोन जो दिए हैं उन पे आप इंटरेस्ट कमाएं। नंबर एक, लोगों के पैसे आपके पास आए और आपने वो लोन के तौर पर दे दिए, तो इंटरेस्ट कमा के अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, डिपॉजिटर को भी रिवार्ड देना है और कुछ आपको बच जाए, बचेगा तो आपकी एसेट्स एक्सपेंड होंगी। और उसके लिए जरूरी है कि लोन जो है वो रिकवरी, उसकी रिकवरी भी इंश्योर्ड हो। अगर रिकवरी नहीं होती लोन की तो फिर तो लोन देने का मकसद नहीं, फिर तो बैंक कोलैप्स करते। तो इस तरीके से ये जो रेशियो सेम वे जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कभी वो एमसीबी के शेयर खरीदते हैं, कभी वो पेट्रोलियम वालों के, कभी वो सुई गैस, डिफरेंट के वो खरीदते हैं। वाई, ऑन व्हाट बेसिस? तो वो ये जो रेशियो कंपैरिजन करते हुए वो अंदाजा लगाते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, मैनेजमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग मोर स्मार्ट, more competent, and they find it advisable to buy the shares of those organizations so that they get a higher reward. If that organization is flourishing, the shareholder will be getting higher reward. So अब ये ratio analysis is defined as relationship between two numbers of same kind. मैंने पहले कहा कि सेम काइंड के वो नंबर होंगे तो उनमें वो निकाली जाएगी। तो जैसे हमने कहा यस्टरडे, पहले ये कहा था कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालने के लिए बेनिफिट्स कहाँ से निकालेंगे या कॉस्ट कैसे आएंगी? कॉस्ट के लिए पहले कॉस्ट आइटम्स आइडेंटिफाई, कॉस्ट आइटम्स के अंदर सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, लेबर, टिम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं उसमें फैक्टर्स के अंदर आएंगे। उनकी क्वांटिटीज, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, तो क्वांटिटीज, अब ये क्वांटिटीज आपने लिख दी, ये डिफरेंट है। इनको एक्सपेक्टेड बेनिफिट आपने वो फॉर्म में लिखा हो, ये क्वांटिटीज आपने इन बैग्स ऑफ सीमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स, तो इनकी बीसीआर कैसे निकलेगी? ये नहीं निकलेगी। तो आप उन कास्ट आइटम्स को मोनेटाइज करके रुपयों में या डॉलरों में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, वो दूध हो, वो फ्रूट हो, वो बाई प्रोडक्ट्स को भी आप रुपयों, डॉलरों, रूबल्स में कन्वर्ट करके एक यूनिट में होंगे तो आपकी वो बीसीआर निकल आएगी। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। नो, बीसीआर मैंने पहले आपको बताया कि चार आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हों, तो आप चारों की बीसीआर निकाल कर यू रैंक देम और रैंक करके फिर आप कहते हैं इनमें से विच इज बेटर ऑप्शन। जहां पे बीसीआर लेस देन 1 है वो तो हमने कह दिया नॉन फीजिबल, और जहां मोर देन 1 है वो इट इज इकोनॉमिकली फीजिबल, बट अमंग दोज अगेन हायर द वैल्यू ऑफ बीसीआर, more attractive, more rewarding
an investment option will be considered. Ratio enables the mass of data to be summarized and simplified. तो बहुत सारी फिगर्स को इकट्ठे करके आप पूजे में दरियाबाद कर दो. Ratio analysis of a firm's financial statement is of interest to a number of parties. जैसे मैंने पहले कहा, शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, फाइनेंशियल एग्जेक्टिव्स जो उनके अपने फाइनेंस मैनेजर है, उसके लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आर वी फाइनेंस मैनेजर एम्प्लॉई है, तो फाइनेंस मैनेजर ये डिफरेंट रेशियोज देखकर कि क्या मुझे जो मालिक है वो बोनस देगा, मुझे इनाम देगा प्राइस, और मुझे वो फारिग करेगा. ठीक है, मुझे कहेगा कि जनाब मुझे हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपने बहुत एफिशिएंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक करप्सी के करीब पहुंचा दिया. तो ये उनको भी फिक्र, सबको फिक्र है, शेयर होल्डर को भी, क्रेडिटर्स को भी, कि जिन्होंने लोन देना है कि वो देखें कि जो फर्म है ये लोन वापस करने की सलाहियत इसमें है या नहीं. Importance of ratio analysis enables the banker and lenders to arrive at the following factors: liquidity position, कैश का लेन देन, देने की, वापस करने की क्या पोजीशन है, कैश पोजीशन क्या है. जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं. फिर हम कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी के मुकाबले में डेट हमारा कितने गुना है. फिर निकालते हैं डेट पर कैपिटा, एक फर्द के जिम्मे वर्ल्ड और फॉरेन डेट कितना है. तो आप पाकिस्तान का, इंडिया का, श्रीलंका का आप जो डेट है वो कंपेयर करके आपको पता चलेगा विच कंट्री इज इन अ बेटर पोजीशन. तो वहां पे हो सकता है बाजार आपको अंदर नजर आए, लेकिन अगर उनके जिम्मे कोई कर्ज नहीं है, दे आर स्ट्रॉन्ग. कर्ज नहीं है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग है, दे कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर बेहतर रेशियोज हैं तो मैनेजमेंट की क्वालिटी के वहां पे अच्छी मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, उनका चार्ट एफिशिएंट लोग हैं. अदरवाइज अगर वो उनकी रेशियोज ओवर टाइम भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर वो नीचे को जा रही हैं तो इट मीन्स कि वो इनएफिशिएंट जो है मैनेजमेंट है. करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कुछ रेशियोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं. तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या होता है, आपको हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट आमतौर पे लोग क्या देते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. Revenue minus explicit cost is also called profit, but economist says it is accounting profit. Accountant के हिसाब से ये होगा, but economist के हिसाब से ये profit नहीं है. हम कहते हैं कि नहीं, explicit and implicit both costs should be deducted or subtracted from the revenue in order to arrive at profit और प्योर प्रॉफिट. और ऐसे ही दूसरी कैटेगरी थी हमारी कॉस्ट की, कि फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट. तो वहां पे जब हम निकालते हैं तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि इन द शॉर्ट रन आवर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट.
फिक्स्ड कॉस्ट है, इट इज फिक्स्ड। तो शॉर्ट रन में वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा नहीं करती। तो वेरिएबल कॉस्ट, तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट कह देते हैं। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दी जाए, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो नेट प्रॉफिट बनेगा, ग्रॉस नहीं, नेट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये दी गए हैं करंट रेशो, करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। असेट्स जो आपके पास हैं या रिसीवेबल इन द शॉर्ट रन, जो अनकरीब रिसीवेबल है, रिसीवेबल एंड in account, in cash form with you, over liabilities, how much you are liable to pay in the short run again. तो उनकी अगर रेशो है तो ये रेशो निकालेंगे तो आइडियल रेशो 2:1। इसका मतलब कि आपके करंट असेट्स जो हैं वो आपकी लायबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी से डबल हो तो आइडियल है। अगर कम है तो आइडियल नहीं है। अगर बराबर है तो इट मीन यू आर वेरी वल्नरेबल। अब यहाँ पे उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सप्लेन की कि 2009-10 में इट इज 1.91 एंड इन 10-11 इट इज 2.2। तो आप देखते हैं कि ये जो उनकी करंट रेशो है थोड़ी इंप्रूव हुई, 1.9 आईपीएल से थोड़ा नीचे है, आईपीएल से थोड़ा नीचे, लेकिन अगेन दूसरे साल में वो 2.2। तो ये बेहतर हुई है। इट मीन्स अगर आप करंट रेशो को वो मेयार बनाएंगे उसकी सक्सेस का, द फर्म इज डूइंग सक्सेसफुल, मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजर is successful or is competent or is intelligent and smart, so that firm is able to make its current ratio better and better. Debt equity ratio, long term debt over shareholders fund, long term debt, short term, medium term, long term लोन और डेट। ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो लेस देन 1 ईयर में वापस करने, लेस देन 1 ईयर, जबकि मीडियम टर्म लोन्स मोर देन 1 ईयर, 2 से 5 साल के दरमियान, ज्यादातर 3 साल 4 साल के अंदर जो वापस करने हो उनको मीडियम टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म जो 10 इयर्स और मोर देन दैट लोन लिए हुए हूं, इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, फॉर द परचेज ऑफ लैंड, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी डेट है। जबकि एक आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं कि आप रॉ मटेरियल खरीदा है, अगेन प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरा, रिकवरी हुई एंड यू अगेन सेटल, तो वो एक चलता रहता है प्रोसेस, सर्कल चलता है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर्स फंड, टोटल शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन कितनी है और आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना है, और अगर वो डेट ज्यादा है और शेयर होल्डर जो है वो उनकी पैसे थोड़े हैं तो इट इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे 3.3 और 3.49, और ये इंटरप्रिटेशन में भी a debt to equity ratio of 3.49 means that debt holders have 3.49 times more claim on assets than equity holders.
तो thus this does not appear to be a healthy situation for the company, which means they cannot borrow more from bank. तो उनके पास अपने असासे नहीं है, अपने पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है और वो बारो किए जा रहे हैं, तो उनको लोन लेने में दुश्वारी होगी। नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, ये आप कहते हैं सेल्स हमारी कितनी होगी, लेकिन सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट, माल आपने 10,000 का या 1,00,000 का बेचा तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ओवर सेल रिसीट। तो इस रेशो को आप नेट प्रॉफिट, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। तो जो टर्म ऊपर रखी होगी वो नेट प्रॉफिट टू सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, वो आपका आ जाएगा रेशो अकॉर्डिंगली आ जाएगी। और यहाँ आप देखते हैं नेट प्रॉफिट में 2.51 अगेन वर्सेस 2.58। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, इंडिकेटिंग अ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाई रिस्क दैट अ डिक्लाइन इन सेल विल अरेज प्रॉफिट। सेल प्रॉफिट जो है 2.5 2.58, तो अगर ये और थोड़ा सा स्लाइट इंप्रूवमेंट है, नेग्लिजिबल इंक्रीज फ्रॉम 2.5 to 2.58, तो इनको थोड़ा काम करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट लाइन। ऐसे ही मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना सरमाया इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कितनी है, मशीनरी पे, बिल्डिंग्स पे, तो इन्वेस्टमेंट और फिर पर रूपी इन्वेस्टमेंट, पर रूपी इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट कितना है। तो इन्वेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इतने परसेंट, या अगर आप 100 से जब देंगे तो इतने परसेंट आपको आ रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे 19.82 एंड 21.43, utilizing the capital invested in favorable manner. It means कि जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे 19 गुना या 21 गुना आपका जो है प्रॉफिट आप रिटर्न्स आप जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो आमतौर पे आप देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट बैंक का अगर 9% हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कि रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे IRR को कंपेयर करते, IRR के वहां पे रिटर्न्स क्या है, तो रिटर्न आपका 21% या 20% है, तो किसी बैंक का इंटरेस्ट ये नहीं होगा। तो आमतौर पे इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% 11% अगर हो, तो it means opportunity cost of capital is much lower than the return you are getting. So it is motivating and advisable आपके लिए भी कि आप लोन ले सकते हैं और लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। You will be able to build your organization, और बैंक के लिए भी कि yes, इनकी जो इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, it is productive, profitable, और अगर इनको और लोन दें तो ये easily they can return back.
Considering the above mentioned points, it is advisable that the management should change its strategies in terms of better utilization of current assets to pay back its creditors on time, rework its pricing policies in order to avoid pressure on profit margin. तो ये एनालिसिस करने का मकसद यही है कि आपको लाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको कोई रास्ता मिले, हाउ यू कैन इम्प्रूव एंड हाउ यू कैन मेक योर ऑर्गेनाइजेशन more competitive and shock absorber. उसके लिए different strategies you have to adopt over time. तो ये कुछ रेशो, अब हर एक के लिए एक ही रेशो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस में कुछ लोग पीसीआर और the other people ask about NPW. Some others will prefer IRR. लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ भी जो रेशियोज हम निकाल रहे हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द फिगर फॉर लॉन्ग टर्म डेट। तो वो फिगर की अगर आपकी एस्टिमेशन ठीक है, अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम्स ठीक है, उनकी वैल्यूएशन ठीक है, तो आपकी बीसीआर मीनिंगफुल होगी। लेकिन अगर आपने कुछ कॉस्ट आइटम्स को वैसे ही ओमिट कर दिया और अदर, इट मींस यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपने जो बेनिफिट्स एस्टिमेट करते वक्त, या आपने यहाँ पे सेल रिसीट माल पर, तो आपने उसकी जो कीमत है वो सही की है, लगाई है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपकी कैश एक्सपेक्टेड में जब पर्टिकुलरली करती है, तो अगर वो आपका अंदाजा गलत है तो इट विल बी डिसास्टर, इट विल नॉट बी, तो रियलिटी से उसका ताल्लुक नहीं होगा। यील्ड पर एकड़, मिल्क एनिमल, अगर आपने वो जो उनका रियल मिल्क प्रोडक्टिविटी है उससे आपने 2 गुना मिल्क एक्सपेक्टेड लिख लिया, तो बीसीआर का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर आप अपने पैसे लगा लेते हैं, लेंडर के पास जाते नहीं, लेंडर जो है वो क्रॉस चेक नहीं करता, आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, इट विल बी डिसास्टर। तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही ये रेशियोज हैं, तो आपकी रेशियोज ठीक होंगी, चार्मिंग नजर आएंगी, तो लोग आपके शेयर्स खरीदने के लिए, जब आपके शेयर्स खरीदेंगे तो अगेन जो हमने लॉन्ग टर्म डेट ओवर शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स मनी बढ़ेगी। डेट आपका जो है वो है, लेकिन शेयर होल्डर्स मनी बढ़ेगी। जब मनी बढ़ेगी तो इट विल, रेशियो विल बी फेवरेबल इन योर। ऐसे प्राइस पॉलिसी आप कीपिंग इन व्यू द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी प्राइस पॉलिसी को थोड़ा रीशेप करेंगे और अपनी सेल्स को बढ़ा लें। अगर सेल्स को बढ़ा लेते हैं और सेल रेवेन्यू आप बढ़ाते हैं, अगेन योर रेशियो विल चेंज। तो डिफरेंट रेशियोज जो हैं वो कुछ लोगों के लिए ये सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन ओवरऑल इनका जो कंपैरिजन, ओवर टाइम कंपैरिजन, ये ओवर टाइम एक फर्म अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है या नहीं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर यू कैन सर्वाइव। हमने पहले डिस्कस किया कि शॉर्ट रन में यू कैन प्रोड्यूस एंड यू कैन कंटिन्यू इवन बियरिंग लॉसेस। आप लॉस मिनिमाइज तो करते हैं, बट लॉस जो फेसिंग सिचुएशन में भी यू प्रोड्यूस, बट इन द लॉन्ग रन यू कैन नॉट, यू हैव टू ईदर क्विट। तो आप इनका तज्जिया करते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज रेशियोज
उनका आप जायजा लेकर इधर यू ट्राई टू इम्प्रूव दोज रेशियोज, इम्प्रूव कर लेंगे, यू विल सर्वाइव एंड यू विल स्टे ओवर। अगर आपको उनकी नब्ज नहीं मिलती, अगर आप इन रेशियोज को इम्प्रूव नहीं कर पाते, इन द लॉन्ग रन यू वोंट हैव एनी फ्यूचर इन दैट इंडस्ट्री। तो आपको क्विट करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मफाजात। इफ यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ कॉम्पिटिटिव एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, तो यू विल हैव टू बी एलिमिनेटेड। आपको अदर कंपटीटर्स एलिमिनेट कर देंगे, यू वॉन्ट बी ओवर देयर फॉर एवर। इस तरीके से ये रेशियोज इंपॉर्टेंट है।